Welcome class 12th. Class 12th, I'm going to do the example number 33. As you know that we are going with the exercise number 5.5. ठीक है, so ये पिछली वाली examples ऐसी कर लिया थी 32 तक. I'm going to do with example number 33. Find dy upon dx if the function is given as like this. ठीक है, देखो बाकी सारे ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ examples ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, देखो ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ example ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ y is equals to y ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਲਾਈਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਕ x ਦੀ ਪਾਵਰ sin x, ਠੀਕ ਹੈ. y is a function of x, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਬਟ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫॉर्म, मतलब x ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ y ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਕਾइंड ऑफ ਦੀ ਇਕੁਏशनस, ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ y ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ. ਸੋ ਦੇਖੋ dy upon dx if y ਦੀ ਪਾਵਰ x plus x ਦੀ ਪਾਵਰ y plus x ਪਾਵਰ x is equals to a ਪਾਵਰ b. ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਓ. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ u, ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ v, ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ w ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ a ਪਾਵਰ b, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ u ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ y ਦੀ ਪਾਵਰ x, v ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ y ਐਂਡ w ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ x, ठीक है. ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ u ਦਾ ਅਲੱਗ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, v ਦਾ ਅਲੱਗ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, w ਦਾ ਅਲੱਗ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਸੌਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, u ਦਾ ਲਿਖੋ. u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ y ਪਾਵਰ x. ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਟੇਕਿੰਗ log ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਟੇਕਿੰਗ log ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ. ਸੋ log u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x log u ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, x log y, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ log u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ. log u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 upon u du upon dx, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 upon x, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 upon x ਦਾ dx upon, ਇੱਦਾਂ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 upon x, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ dy dx of x, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 1 upon u du upon dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਇੱਥੇ u into v. So x d by dx of log y plus log y d by dx of x. Okay, so it is 1 upon u du upon dx. बच्चे देखो इतने d by dx of log y ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ. ਦੇਖੋ log y ਦਾ ਦੇਖੋ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ 1 upon x, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, into d by dx of ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ 1 upon y, ਇੱਥੇ 1 upon y into d by dx of ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ y, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਸ log y x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ y, x upon y dy upon dx ਆ ਗਿਆ, ਪਲਸ log y, ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1 upon u du upon dx, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ du upon dx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, u ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ x upon y dy upon dx plus log y. u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, y ਪਾਵਰ x, ਸੋ x upon y dy upon dx plus log y, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, u ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ v ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ. ਸੋ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x ਪਾਵਰ y. ਓਕੇ, ਸੋ x ਪਾਵਰ y ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਟੇਕਿੰਗ log ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ. log v ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y log x ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 upon v dv upon dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਇੱਥੇ u into v ਲਗਾਓਗੇ, y into d by dx of log x plus log x d by dx of y, ਠੀਕ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 upon x plus log x, ਹਾਂਜੀ dy upon dx ਹੈ, ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹੀ ਲਿਖੋਗੇ, dy upon dx ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ dv upon dx is equals to w upon x plus log x. ਆ v ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ v ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x ਪਾਵਰ y,
Okay, so this is the value of dv upon dx, this is the value of du upon dx. In the similar way you can find out dw upon dx. ठीक है बच्चों, मैं डायरैक्टली लिख रही हूँ, बहुत ही सौखा आया, x log x का डेरिवेटिव तुसी ऑलरेडी पहले भी किया हुआ, तो मैं डायरैक्टली लिख रही हूँ dw upon dx. ठीक है, तुसी इत्थे लिखोगे ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करके आएगा x पावर x 1 प्लस log x. ठीक है, सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तीनों डेरिवेटिव आ गए, ए वी एंड डी यू, मतलब ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ डेरिवेटिव ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गया, अलग अलग निकाल लिया. लास्ट से आंसर कितना दोगे, कंबाइन करके. ठीक है, कंबाइन कितना करोगे, देखो वी वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस. इट मीन्स y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x इज इक्वल्स टू a पावर b. ठीक है, इट मीन्स टेक इट एज इत्थे a पावर b. डेरिवेटिव ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx. बच्चे देखो a तो पावर b, a तो b की होंगे आ कॉन्सटेंट्स होंगे, तो कॉन्सटेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना आता 0. सो इट मीनस आ वाली चीज़ 0 बन गई. हुण इन्हां तिन्हां की वैल्यू, इन्हां तिन्हां के डेरिवेटिव मेरे कोल हैगे आ दिस एंड दिस. पुट द वैल्यू ओवर हियर. ठीक है, उतों आप वैल्यू पुट करके तो आंसर कितना निकालना, आंसर मैं निकालना dy अपॉन dx. देखो कितना आएगा, मैं सिंपली ये वैल्यूज़ में पुट कर रही हूँ. y पावर x अपॉन y, simply putting the value of this, and dv upon dx, put the value over here. ठीक है, यदि भी वैल्यू बच्चे इतने पुट कर दो, x पावर x 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो नैक्सट असी की किया इतने dy. बच्चे देखो मैंने वैल्यू जी ना आंसर पर dy अपॉन dx का ही देना. यदा मतलब की करना, सारे टर्म्स के विचों dy अपॉन dx वाली टर्म्स जी ना कॉमन ले लो. ठीक है, तो बाकी आंसर्स लिख दो. अगर इतने बच्चे मैं dy अपॉन dx वाली टर्म्स इकट्ठियाँ करनी स्टार्ट करा, कि टर्म आएगी dy अपॉन dx वाली, एक यह टर्म आएगी. ठीक है, उस तो बाद एक टर्म आएगी आ वाली, इन्होंने इकट्ठे कर लो, बाकी दूसरी साइड पर लै जाओ. आ देखो y दी पावर x पावर x अपॉन y. ठीक है, इतों dy अपॉन dx है, एक इतने dy अपॉन dx है, मतलब प्लस log x पावर y. ठीक है, इतने dy अपॉन dx एदा इन्होंने दोनों चो कॉमन ले लिया. ठीक है, बाकी वाला पार्ट दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दो, यानी कि माइनस x पावर x 1 प्लस log x माइनस y, आ वाला पार्ट. ठीक है, उस तो बाद एक पार्ट आवला आ जाना साढ़े को, प्लस y अपॉन x दी पावर y. ठीक है, यह वाला पार्ट आ जाना एक साढ़े को. उस तो बाद dy अपॉन dx असी निकालना है. ठीक है, इनू की करो, इतने रखो, आवला पार्ट उपर ये डिवाइड कर दो. मेरे को इतने स्पेस नहीं, आई एम नॉट डूइंग दिस, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू आ पार्ट नीचे, जिदा देखो मैं तुम्हें दस सकती हाँ फ्रॉम द बुक. ठीक है ना, इसी तरीके के नाल इन्होंने dy अपॉन dx इतों कॉमन ले लिया. ठीक है, एंड ए वाला पार्ट ऊपर, ए वाला पार्ट नीचे डिनोमिनेटर. सो इन दिस वे dy अपॉन dx की वैल्यू होगी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ी लेंथी है बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन तुम ये नाल करोगे. मैं कुछ क्वेश्चन होर एक्सप्लेन कर रही हूँ. हाँ जी बच्चे देखो, दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर NCERT बुक. ਇਹਦਾ डेरिवेटिव कितना सॉल्व करेंगे, लेट इट बी इक्वल टू y, इनू y इज इक्वल्स टू u प्लस v ले लो. ठीक है, दिस इज u, दिस इज v. ओके, सो इफ वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. ओके, सो du अपॉन dx का डेरिवेटिव इतों निकालेंगे. सो टेक u इज इक्वल्स टू log x दी पावर x, taking log on both sides, log u is equals to, can I write it as x log of log u. इतना लाइक कितना कितना मैं किया, log u इधर लिया एंड log of log x दी पावर x. ठीक है ना, दोनों साइड्स से log लिया, जी पावर होंगी होके आ जाती है. ठीक है, log of log x. हूँ इसका डेरिवेटिव करांगे, डेरिवेटिव कितना, इनू प्रोडक्ट ले लेना. सो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du अपॉन dx, प्रोडक्ट कितना x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वट एक्स. ठीक है, अगे एक्स बच्चे देखो, यदा डेरिवेटिव अगे असी सॉल्व भी किया हुआ है.
ठीक है तुसी कर सकते हो log of log x का डेरिवेटिव 1 upon log x, ठीक है, into d by dx of what log x, ठीक, log of log x ਇਹਦਾ डेरिवेटिव 1, ओके। नेक्स्ट x 1 upon log x d by dx of log x कितना होंदा 1 upon x, so this is 1 upon x, okay, plus log of log x, ठीक है। तो 1 upon u du upon dx नाल आ, ओके। एंड इहदे विच मैं कह सकती हूँ कि आह वाला x ना कैंसिल हो गया, ओके। एंड दिस इज 1 upon log x प्लस log of log x, ठीक है जी। तो आह वाला u इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो u की वैल्यू कितनी है वाली, यानी कि log x की पावर x, ठीक है जी। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द du अपॉन dx। इन दिस वे यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dx, ठीक है। तो बच्चे dv अपॉन dx कितना होगा वा x की पावर log x, देखो x की पावर log x कितना सॉल्व करांगे, v इज इक्वल्स टू x पावर log x, ओके। dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, देखो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ਇਹਦਾ मतलब log v इज इक्वल्स टू, ਹੁਣ देखो बच्चे कहना राइट इट एज log x पावर log x है ना इतने, ਇਹਦਾ मतलब log v इज इक्वल्स टू log x एंड इतने भी फिर log x, बच्चे समझ गए हो कितना कितना, देखो log x की पावर log x सीगा, ठीक है ना। log इतने मैं किया टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सब तो पहले तो ठीक है log v हो गया, इतने की किया log ऑफ x पावर log x, ठीक है। इट मीनस log v इज इक्वल्स टू log x, ए वाला अगे आया तो आ वाला पीछे चला गया, इसका मतलब दो log बन गए, तो कहना राइट इट एज log v इज इक्वल्स टू log x द होल स्केयर लिख सकती हैं, दो बारी लिख ला इदा, ठीक है। हूँ इन्हों डिफरेंशिएट करो, तो इट मीनस 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 log x, 2 टाइम्स log x d by dx ऑफ log x। देखो इनू कितना मैं x पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना, x पावर n का फॉर्मूला लाया n x n माइनस 1, अगों की होंदा विचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नाल, ओके। सो 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 log x, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है। सो dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है x log x इंटू 2 log x upon x, so this will be your dv upon dx, this is your du upon dx। दोनों ने बच्चे कंबाइन करके इतने रिजल्ट दे दो, ओके, कंबाइन करके लिख लो, दैट विल बी योर आंसर। इस तरीके के नाल करोगे अपना क्वेश्चन, ओके। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। फ्रेंड्स दिस एक्सरसाइज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्वेश्चन जरूर ये आ जाता हमेशा, ठीक है। सो राइट इट एज u प्लस v, ओके। सो u इज वट x cos x, ओके। सो देखो u प्लस v y इज इक्वल्स टू u प्लस v लिया, ਇਹਦਾ मतलब dy अपॉन dx के इक्वल आएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ओके। सो u द वैल्यू है, u ਨੂੰ अलग सॉल्व करना, v ਨੂੰ अलग सॉल्व करना, ओके। सो टेक इट एज log u इज इक्वल्स टू cos x, एक मिनट बच्चे यही क्वेश्चन है, सॉरी बच्चे थे एक आ चीज़ भी है x की पावर x log x है, ठीक है, x log x, ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब इतने अगर मैं log u लिया है ना, अगर इतने मैं इदा करा log दी x इंटू x cos x, ओके, इदा तो क्या आएगा log u इज इक्वल्स टू, अच्छा x cos x जो ये पावर है ना अगे आनी, ਇਹਦਾ मतलब की पावर अगे आएगी x cos x इंटू log x, ठीक है। आ वाली पावर चुक के अगे गलती नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी, सोचना नहीं है कि कितना आएगा। देखो ना इतने 3 फंक्शनस आ, मतलब x का प्रोडक्ट cos x ना प्रोडक्ट log x ना, मतलब 3 चीज़ा आया है ना, 3 चीज़ा प्रोडक्ट चा, तो उत्थे फिर रूल प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, ठीक है, बट प्रोडक्ट रूल 3 चीज़ों का लगेगा, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव इतने करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u du अपॉन dx, ठीक है। इतने बच्चे प्रोडक्ट रूल लगाओ, सब तो पहले x उदा ही लिख देना, cos x भी उदा ही लिख देना, डेरिवेटिव इदा करना, ठीक है, इंटू dy dx ऑफ
log x। ओके नैक्सट टाइम की करो x तो log उदा ही लिख दो, डेरीवेटिव cos का कर दो। ठीक है हुण तुहानूं आई थिंक आ प्रोडक्ट रूल लगाना आंदा होएगा cos x। ठीक है नैक्सट विच की करो cos तो log उदा ही लिख दो, इहदा डेरीवेटिव कर दो। ठीक है इहदा मतलब cos x log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इन दिस वे प्रोडक्ट रूल लगाईदा कि पहले एक हर एक का डेरीवेटिव एक बार होना, पहले आ दो लिख दो, फिर यदा डेरीवेटिव कर दो, आ दो लिख दो यदा डेरीवेटिव, आ दो लिख दो यदा डेरीवेटिव। ठीक है सो इस तरीके मैं करता, पहले लिख लो ये चीज़ इदा ही। तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू इट मीनस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1 अपॉन एक्स। ओके प्लस एक्स लॉग एक्स डेरीवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके कॉस एक्स लॉग एक्स इहदा डेरीवेटिव 1, कुछ भी नहीं लिखोगे। ओके सो देखो इतने एक्स तो एक्स कैंसिल हो गया, बाकी भी देख लो सारी चीज़ा मैनेज कर ली होंगे इतनी। ठीक है तो इतने यू वाली टर्म ये मल्टीप्लाई होनी है, यदा मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी है वाली एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, तो वो की आएगा कॉस एक्स प्लस इतने माइनस बचे यदा है ना साइन एक्स लॉग एक्स प्लस cos x log x। बच्चे ये टर्म्स में कॉमन वगैरह भी लै सकते हो, थोड़ी अपनी मर्जी आ। ठीक है जिदा हम cos इतने भी है cos इतने भी है, इन्होंने दोनों टर्म्स में लिख के 1 प्लस log x कर लो, ये भी कर सकते हो, थोड़ी अपनी मर्जी है। ठीक है नैक्सट इज दी v वाला पार्ट। आ देखो v वाला पार्ट हम कितना करेंगे, v इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस 1। ठीक है सो बच्चे देखो इतने सब तो पहले तो ना इतने बच्चे सब तो पहले तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो दूसरे मैथड ना यू अपॉन वी ला के भी हो सकता, पर अपन लॉग ला के करना है। ठीक है देखो की करोगे लॉग वी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 1। ओके देखो लॉग वी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्केयर माइनस 1। मैथ बच्चे लगाया लॉग एम अपॉन एन लगाया, तुहानू पता कि अगर है डिविजन के हो तो लॉग की हो जाते माइनस हो जाते। हूँ इनू की करोगे डिफरेंशिएट करोगे, इतने डिफरेंशिएट करना इनू। ठीक है लॉग वी का डेरीवेटिव 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्केयर प्लस 1 यानी कि आएगा 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 1 यानी कि लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू की करीदा डी बाई डी एक्स ऑफ जोड़ा फंक्शन अंदर है वो सब फंक्शन का डेरीवेटिव। ओके नैक्सट बच्चे देखो इतने 1 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये सब फंक्शन का एक्स स्केयर माइनस 1 अंदर वाले फंक्शन का। ठीक है तो इतना ही 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 1 यदा डेरीवेटिव बच्चे की होगा एक्स स्केयर प्लस 1 का डेरीवेटिव 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 1 यदा डेरीवेटिव बच्चे 2x ही आएगा। ओके सो सिंपली डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू तुम इन्होंने दोनों चो 2 कॉमन लै लो। ठीक है एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्केयर माइनस 1। ठीक है तो इनू तुसी सॉल्व कर सकते हो। नैक्सट हाँ जी बच्चे एक तो अगे ना इदा तुसी इनू सोल्यूशन कर लो, अगर ना भी करो तो भी ठीक है कोई गल नहीं है। डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू इतने 1 अपॉन वी सी ना वी इतने आया सब तो पहले तो ऊपर आया वी। ठीक है तो अगर वी इतने आएगा तो वी की वैल्यू एक्स स्केयर आ वाली एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू बच्चे अगर इनू मैं सॉल्व करना चाहवा तो एलसीएम लै लो, ये तुम अपने आप करोगे सॉल्व एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस 1। ठीक है यह वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है इतने की आ जाएगा साढ़े कोल एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है इस तरीके के नाल ये वाला पार्ट बच्चे तुम अपने आप अगों तो सॉल्व करोगे। ठीक है एलसीएम वाला पार्ट है तुम अपने आप सॉल्व करोगे। ठीक है आई टेक इट एज यू। ओके सो डी वी अपॉन डी एक्स तो डी यू अपॉन डी एक्स दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों इतने लिखो ऐड करो दैट विल बी योर आंसर। ओके सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी नैक्सट इज द 14th क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। बच्चे देखो इतने 11 तक जो क्वेश्चन है ना दैट आर द फंक्शनस विच आर द वाई जोड़ा कि एक्स का फंक्शन है सारे फंक्शन मतलब एक्स वाले गिवन है। तो यह वाले जोड़े ना दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द इंप्लीसिट फंक्शन मतलब 12 तो लैके जो नैक्सट गए 15 तक लगा लो। ठीक है
तो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ दी इंप्लिसिट फंक्शन जिहदे वाई भी नाल इनकलूड हो रहा, ठीक है। सो थोड़ा जिहा डिफरेंट तरीके दे नाल करने आ वाले दो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर एज एग्जाम्पल हो गए, देखो जो मैं वाले कराए है ना, एक्स दी पावर वाई है तो एक्स दी पावर वाई इत्थे भी तो सॉल्व किया एक्स दी पावर वाई, ठीक है। उसी तरीके दे नाल तुसीं सारे सॉल्व करोगे, इनू अलग लो, इनू भी अलग लो, इनू भी इस तरीके दे नाल, ओके। सो आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 फॉर यू, ठीक है, तो तुसीं करोगे अपने आप, ओके। सो कॉज एक्स दी पावर वाई इज इक्वल्स टू कॉज वाई इज इक्वल्स टू एक्स, अगर इक्वल्स टू आ इनू इदा भी कर सकते हो, इधर लैके माइनस कर दो, कॉज एक्स पावर वाई माइनस कॉज वाई दी पावर एक्स इक्वल टू 0 कर दो, या दोनों इकट्ठे सॉल्व कर लो, ठीक है। अब मैं इकट्ठे सॉल्व करने लगी हूँ, तुहानू प्रैक्टिस हो गई होएगी अलग अलग ना सॉल्व करके। तो मैं की कर रही हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग cos x पावर y is equals to log cos y दी पावर x, ओके। सो इन्हें कितना करोगे, y इंटू log cos x इज इक्वल्स टू x इंटू log cos y, ठीक है, इस तरीके के नाल। सो नैक्सट कर लिया, लॉग लगा लिया, हुण इनू करोगे डिफरेंशिएट, ओके। सो इत्थे u इंटू वी, इत्थे u इंटू वी, मतलब यह अलग फंक्शन लोगे, इनू अलग, इन्होंने दोनों अलग लोगे, ठीक है। So now first into derivative of second, ठीक है, प्लस log cos x, तो डेरिवेटिव कितना आएगा d by dx of y इज इक्वल्स टू x इंटू d by dx of log cos y, ओके, प्लस log cos y इंटू d by dx of x, ओके। इदा ए लिख के इहदा डेरिवेटिव, फिर आ लिख के फिर 1 दा एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। सो नाउ वाई इहदा डेरिवेटिव देखो log cos x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इट मीनस क्या आएगा 1 अपॉन cos x, उस तो बाद अंदर वाली सब फंक्शन का एक बार होर डेरिवेटिव, यानी कि d by dx ऑफ वट cos x, ओके, इदा इहदा डेरिवेटिव होएगा, प्लस log cos x उदा ही, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का कुछ भी नहीं करना, सिंपली लिख लो, ठीक है। एक्स इंटू एदा डेरिवेटिव बच्चे 1 अपॉन कॉज वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज वाई, ठीक है जी। आगे देखो प्लस लॉग कॉज वाई एदा डेरिवेटिव 1, ओके। सो नैक्सट इज दी किदा करांगे, देखो हाँ जी, देखो इतने y अपॉन cos x, हाँ जी बच्चे y अपॉन cos x का डेरिवेटिव वट माइनस साइन x, इतने लिखो माइनस साइन x, प्लस लॉग cos x dy अपॉन dx इतना ही, ओके। सो इतने x अपॉन cos y, बच्चे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ cos y है, ठीक है। सब तो पहले तो cos y का डेरिवेटिव कितना आएगा sin y, ठीक है। देखो sin y तो आ गया, पर आप x का y वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब y मतलब इतने ਜਿਹੜਾ x सब फंक्शन है वो x की फॉर्म के नहीं है, सो दिस इज माइनस sin y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा, मतलब ये सब फंक्शन का भी डेरिवेटिव होएगा, ठीक है। ध्यान नाल देखो, अगर मान लो मेरे को होंदा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव होंदा माइनस sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x होंदा इत्थे, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 होंदा तो इहनूं तां करके मैं माइनस sin x लिख दिंदी हां। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे को हैगा वा sin y मतलब cos y, सो इट इज़ माइनस sin y तो आ ही जाएगा, बट ये सब फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा नाल साढ़े कोल, ठीक है ना। सो इट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग cos y, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतने हम तुम अगे वाला काम अपने आप करोगे, इतने की करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स नू कॉमन लै लो, वो एक साइड पर कर लो, बाकी दूसरी साइड पर आ जाएगी। आंसर आप डी वाई अपॉन डी एक्स का ही देना, मतलब आ वाली तो आ वाली टर्म इकट्ठी हो जाएगी, ए वाली तो आ वाली जी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है। तो अगे वाला काम तुम अपने आप करोगे, डेरिवेटिव मैं सॉल्व कर देता, ओके। सो नैक्सट इज दी 15th क्वेश्चन, क्या 15th क्वेश्चन देखो किस तरह करांगे। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स वाई ई दी पावर इज इक्वल्स टू ई दी पावर एक्स माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव करना, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव देखो किस तरह आएगा,
ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਟੂडेंट्स देखो ध्यान नाल। हाँ जी स्टूडेंट्स देखो इतने एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई दी पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो कितना करोगे, लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग ई दी पावर एक्स माइनस वाई, ओके। लॉग एक्स वाई का मतलब की है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ओके। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो log e ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, मतलब ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ log mn, log m ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ log e, ओके। log mn वाला बच्चे फॉर्मूला लगाया, log mn पावर अगे log e पीछे, ठीक है। सो इट इज़ log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। बच्चे अगर तुहानू याद हो तो log e की वैल्यू होंगी है 1, ठीक है। log e 1 होंगे, सो पुट इट एज 1, ये log e वाला टर्म खत्म हो गया, 1 बन गया, ठीक है। सो साढ़े कोल की रह गया log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, ओके। सो इनू बच्चे डिफरेंशिएट, हूँ डिफरेंशिएट करांगे, डिफरेंशिएट करना ईजी है, इनू log x नू डिफरेंशिएट करोगे की आएगा 1/x, ठीक है। एंड log y नू बच्चे डिफरेंशिएट करोगे की आएगा 1/y, नाल की आएगा dy/dx, ठीक है। क्योंकि देखो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इतने की y, सो यदा 1/y तो नाल dy/dx आना, ओके। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। तो सिंपली बच्चे dy/dx वाली टर्म्स इकट्ठियां कर लो, बाकी अलग कर लो, ठीक है। हुण मैं इत्थे की कर रही हाँ, देखो आ वाला dy/dx वाली कड़ी टर्म की आ वाली, इट मीनस 1/y इधर प्लस 1 dy/dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x, ठीक है। इट मीनस dy/dx का आंसर कितना आ गया, इनू थोड़ा जा सॉल्व कर लो, 1 प्लस y/y, ठीक है। इनू सॉल्व करांगे x माइनस 1/x, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल्स टू आ वाली टर्म इधर जाएगी, इट मीनस आ की हो जाएगी y/1 प्लस y, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/x, ठीक है ना। तो इनू बच्चे बस इकट्ठा कंबाइन करके लिख लो, y x माइनस 1x 1 प्लस y, सो दिस विल बी योर आंसर dy/dx। स्टूडेंट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, सारी एक्सरसाइज ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइम तो भी करनी है, तो ये तुसी खुद करोगे बाकी तो, ठीक है। यह दोनों पार्ट्स मैं दस दिते। नैक्सट क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, आ सारी फंक्शन 4 चीज़ा प्रोडक्ट के गिवन है, इन्हां ते लॉग लगाओगे, अलग अलग लॉग लगेगा, ये अलग लॉग है, ये अलग, ये अलग अलग डेरिवेटिव आएगा, बहुत ईजी है, खुद करोगे क्वेश्चन। फाइंड f-1, f-1 का मतलब है कि जो भी डेरिवेटिव आएगा लास्ट में x की वैल्यू तुसी 1 पुट कर दोगे उन्हें, ठीक है, वो जो भी तुहाडा आंसर आ जाएगा। नैक्सट इज डिफरेंशिएट, आ वाले फंक्शन को 3 तरीके के नाल कहते डिफरेंशिएट करके दिखाओ। 3 तरीके के डिफरेंशिएट मतलब कि देखो प्रोडक्ट है, एक यूजिंग प्रोडक्ट रूल यानी कि मतलब u इंटू v लगाओ, एक तो उस तरीके के नाल कर सकते हो, एक कर सकते हो कि बाय एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट टू प्लेन अ सिंगल पॉलीनोमियल, एक कर सकते हो कि जिवें 2 ब्रैकेट है ना, इन्हों दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके एक वड्डा जा पॉलीनोमियल बन जाएगा, तो उस पॉलीनोमियल की सिंगल पॉलीनोमियल की डेरिवेटिव निकालोगे। एक तुसीं लगाओगे लॉग लगा के इन्होंने डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। तीनों तरीके के नाल कहते कि चैक करो कि तीनों तरीके के नाल डेरिवेटिव करोगे आंसर सेम आता तीनों का, ठीक है। ये तुसीं खुद करोगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दिस, इफ u v and w are the functions of x, u v and w functions of x again, then show that this in the 2 ways, by repeated application of the product rule, second by the logarithmic differentiation। सिंपली पहले u v and w लो, ठीक है, वो रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ तुहानूं पता है कि प्रोडक्ट रूल लगाओ एक बारी लॉग दे नाल ओहदी डेरिवेटिव करो, u v ते w कोई भी लै सकते हो, द फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल है कि उन्हें सॉल्व कर लो, ठीक है। सो इन दिस वे एक्सरसाइज 5.5 तुहाडी हो गई है, कंप्लीट करो ऑन योर नोटबुक्स। थैंक यू सो मच।